Hello students, a very pleasant welcome to you all in the class of accountancy, class 12th, where we were dealing with the concept of financial statement analysis and its relative tools. And dealing that, we came to know that what are the tools that are used in the analysis of financial statement. During that, we have came to know that what are the concept of financial statement analysis and what are the major significances and merits and demerits of the financial statement analysis. And talking about tool, we came to know that several tools are used for the analysis of financial statement, such as cash flow, fund flow, ratio, comparative common size, trade analysis, and so many more. So, as per the curriculum of term 2, accountancy of class 12, we have to deal the concept of cash flow, the concept of comparative statement, and a part of that we will deal the common size statement also. So as these all have been discussed earlier, we will try to revise the concept of comparative statement in this class, and later on we will try to find the same analysis on the basis of common size statement also. So let us talk about the comparative statement and the relative format and the implication of the comparative statement during financial statement analysis. So let us talk about the comparative statement, what it is. So first of all, the comparative statement means the tool of analyzing comparative statement, means the tool of analyzing financial statement, and a part of that we also have to know that this tool analyze the financial statement in a horizontal manner so that the change and trend to change in financial statement may be ascertained, and a part of that it also helps to ascertain the volume of change, means the value of absolute change that took place in a financial figure over a period of time. यानी अगर हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट से अपनी एनालिसिस करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, तो वी विल केम टू नो कि हमारे किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की किसी इन्फॉर्मेशन में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में क्या चेंजिंग आई है और कितनी चेंजिंग आई है. ये जो चेंजिंग है वो ना केवल परसेंटेज में बल्कि एब्सोल्यूट फिगर में भी दिखाई जाती है, सो दैट वी कुड हैव अ क्लियर सेंस एंड the various decision on the basis of that could be taken smoothly and conveniently, as we can say that the comparative statement helps the calculation of absolute change and change in percent. This absolute change refers to the value of current year minus the value of previous year figure, and the change in percent refers to the absolute change or
the value of absolute change upon previous year value of the same item into 100. So these two are the major formulas of preparing comparative financial statement analysis and the various information on the basis of that. So let us talk about the format of financial statement analysis, and let us make a analysis of financial figure with the help of a practical example, so that we could have a clear sense that how comparative statement works and how the various information could be driven out with the help of comparative statement analysis. So let us take an example of financial statement analysis with the help of comparative statement. So as you can see here, this is the balance sheet of a company which is given as a particular point of time, where the value of previous year, suppose 31st March 2018 is given, and at the very same time the value of current year, suppose 31st, on the basis of that 31st March 2019 the values are given. 31 मार्च 2018 को हमारी कंपनी की जो बैलेंस शीट थी उसकी लायबिलिटीज और असेट्स के कंटेंट दिए थे, एंड ऑन द अदर हैंड 31 मार्च 2019 को हमारे पास बैलेंस शीट में जो भी कंटेंट थे उनकी वैल्यूज गिवन थी। हमें इस क्वेश्चन के बेसिस पे कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाने को बोला जाएगा। तो लेट अस सी हाउ द कंपैरेटिव स्टेटमेंट विल बी मेड एंड हाउ the various information related to that could be driven out. So let us talk about the information that is given in the balance sheet. सबसे पहले तो हम बैलेंस शीट की बात करें। बैलेंस शीट में जो भी चीज़ें दी हुई हैं, क्या दी हुई हैं, सबसे पहले हमारे शेयर होल्डर फंड की अगर हम बात करें तो शेयर कैपिटल की वैल्यू 21 लाख और 20 लाख दी हुई है, यानी प्रीवियस ईयर में हमारे जो शेयर होल्डर करंट ईयर एक्चुअली जस्ट अ सेकेंड जो वैल्यू है वो करंट ईयर और प्रीवियस ईयर के फॉर्म में दी हुई है ना, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो करंट ईयर के शेयर कैपिटल की वैल्यू 21 लाख है, उसकी वैल्यू पिछले साल हमारे पास 20 लाख रुपए थी। जो रिजर्व सरप्लस इस साल हमारे पास 2,30,000 का था, पिछले साल 2 लाख का था। नॉन करंट लायबिलिटी 50,000 से बढ़ करके जो है 2,000 से घट करके 50,000 आ गई है, और करंट लायबिलिटी जो है 1 लाख से 2,80,000 की हो गई है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट जो करंट असेट्स हैं उनकी वैल्यू भी हम लोगों के सामने दी हुई है। एज यू कैन सी दैट द फिक्स असेट्स हैज इंक्रीज्ड बाय 2 लाख एंड इट हैज बीन रीच अप टू 24 लाख। 2 लाख के जो इन्वेंट्रीज थी उसकी वैल्यू 5,60,000 हो गई है, और जो 1 लाख के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट थे उनकी वैल्यू 2,10,000 हो गई है। और इसकी बेसिस पे जब हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाएंगे तो उसकी सॉल्यूशन जो है बनाते समय जो कंपनी की बैलेंस शीट है उसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो बिल्कुल सेम रखते हैं हम, और लास्ट में 2 एडिशनल कॉलम और ऐड कर देते हैं, ठीक है। क्या होंगे वो एडिशनल कॉलम, जिसमें सबसे पहला कॉलम होगा जैसा मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले फॉर्मूले में कि सबसे पहला कॉलम होगा हमारा एब्सोल्यूट चेंज का, ठीक है, विच डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ चेंज, ठीक है। और इसके बाद जो है चेंज इन परसेंट की हम बात करें अगर, तो चेंज इन परसेंट जो है वो भी निकाला जाएगा व्हाइल मेकिंग द कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ एनालिसिस, ठीक है। इन दोनों की कैलकुलेशन के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि जब एब्सोल्यूट चेंज कैलकुलेट करते हैं, एब्सोल्यूट चेंज इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ करंट ईयर माइनस वैल्यू ऑफ प्रीवियस ईयर, और चेंज इन परसेंट में हमने आपको बताया था कि चेंज इन परसेंट की वैल्यू निकालते हैं एब्सोल्यूट चेंज अपॉन करंट ईयर वैल्यू इनटू 100। इन दो फॉर्मूले को अगर हम यूज करें तो हमारे हर ईयर की जो इंफॉर्मेशन है उसकी कंपैरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस हम इजीली कर सकते हैं। सो लेट अस सी हाउ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द particular year or the particular information could be driven out.
as we can see here that the value of absolute change could be calculated with the value of current year minus previous year. तो करंट ईयर में हमारे शेयर कैपिटल की वैल्यू 21 लाख थी और प्रीवियस ईयर में 20 लाख. तो 21 minus 20 that is 1 lakh will be the value of absolute change in the share capital. और इसी समय अगर हम इसके चेंज इन परसेंट की बात करें तो चेंज इन परसेंट का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है? चेंज इन परसेंट का फॉर्मूला पढ़ा हमने 1 लाख यानी द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट चेंज अपॉन 20 लाख द वैल्यू ऑफ प्रीवियस ईयर इनटू 100. ठीक है, डबल जीरो से डबल जीरो कट किया हमने और इसके बाद 40 से हमने 40 कट किया. 10 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 5% जो है हमारी वैल्यू आ गई. तो 5% का चेंज हम देख सकते हैं हमारे करंट ईयर में जो शेयर कैपिटल की इंक्रीजमेंट है उससे. इसी तरीके से अगर हम रिजर्व सरप्लस की बात करें तो रिजर्व सरप्लस में 2,30,000 की वैल्यू जो थी पिछले साल केवल 2 लाख थी. इन दैट केस 30,000 हैज बीन द अमाउंट ऑफ 30,000 हैज बीन रेज्ड एंड 30,000 की जो वैल्यू है उसको हम 2 लाख में कन्वर्ट करके जो है अगर परसेंटेज कैलकुलेट करना चाहें तो 30,000 अपॉन 2 लाख इंटू 100. डबल जीरो से डबल जीरो डिवाइड करने के बाद 1 2 3 1 2 3 30 डिवाइडेड बाय 2 दैट मीन्स 15% जो वैल्यू होगी वो हमारी करंट ईयर के एब्सोल्यूट चेंज की परसेंटेज की वैल्यू होगी रिजर्व सरप्लस के रिगार्डिंग. यानी रिजर्व सरप्लस पिछले साल के कंपैरिजन में 15% इंक्रीज कर गया है. इसके बाद हम जब नॉन करंट लायबिलिटीज की बात करें तो नॉन करंट लायबिलिटी एज यू कैन सी दैट 5,60,000 करंट ईयर है और पिछले साल की वैल्यू 2 लाख थी. यानी जो इंक्रीजमेंट हुई है दैट इज 3,60,000. 3,60,000 की परसेंटेज चेंज की कैलकुलेशन अगर हम करें तो परसेंटेज चेंज के लिए हम देख सकते हैं कि 3,60,000 एब्सोल्यूट चेंज की वैल्यू है और प्रीवियस ईयर में इट वाज 2 लाख एंड इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 100. डबल जीरो से डबल जीरो कट करने के बाद 1 2 3 ठीक है 3 जीरो कट किया हमने और 360 को 2 से डिवाइड करने पे हम पाएंगे कि 180 यानी 180% की इंक्रीजमेंट हमारे नॉन करेंट लायबिलिटीज में हमने वॉच की, मेजर की. और इसके बाद करेंट लायबिलिटीज की अगर बात करें हम तो करेंट लायबिलिटी एज यू कैन सी दैट द वैल्यू हैज ऑफ प्रीवियस ईयर वाज 1 लाख एंड द करेंट वैल्यू वाज 2,80,000. अब इसकी एब्सोल्यूट चेंज की बात करें अगर हम तो 1,80,000 आएगा और एब्सोल्यूट चेंज के परसेंट की बात अगर हम करें तो 1,80,000 की वैल्यू को प्रीवियस ईयर यानी 1 लाख से हम अगर डिवाइड करें तो वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ परसेंटेज दैट इज 90%. यानी 90% जो वैल्यू है वो अल्टीमेटली इंक्रीज हो गई हमारी. ठीक है 180% जो है वैल्यू इंक्रीज कर गई हमारी. 180% की इंक्रीजमेंट हमने देखी. ठीक है और इसके बाद इसके सम टोटल की बात करें, बैलेंस शीट के सम टोटल की बात करें तो ये देख सकते हैं हम जो लायबिलिटी साइड का सम टोटल है दैट इज 31,70,000 इन द करेंट ईयर. 31,70,000 इन द करेंट ईयर एंड 25 लाख इन द प्रीवियस ईयर. ठीक है इन दोनों के कंपैरिजन की बात अगर हम करें तो एज वी कैन सी दैट 6,70,000 हैज बीन मेजर्ड एज द वैल्यू ऑफ चेंज. और इसके चेंज परसेंट की बात अगर हम करना चाहें तो वी कैन सी दैट द 6,70,000 विल बी डिवाइडेड बाय 25 लाख इनटू 100. 1 2 3 1 2 3. अब 25 से डिवाइड अगर करें तो 25 2 जब लेट अस सी 670 विल बी डिवाइडेड बाय 25. ठीक है तो 25 2 जब 50 दैट मीन्स 170. और अगर इसको जो है आगे हम कैरी करें तो एज वी कैन नो दैट
the if the 25 will be multiplied by 6, that means 150, it remains the value of 20, यानी 2 पॉइंट लगाने के बाद ये जो वैल्यू है 20 आ जाएगी, 200, इट मीन्स 26.8 की परसेंटेज चेंज हमने अपने एग्रीगेट बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में देखी। ठीक है, 26.8% की एग्रीगेट चेंज हमने बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में हमने मेजर की। ठीक है, आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ द liability side related to the comparative statement is very much clear to you. Now let us talk about the informations related to the asset side. Let us talk about the asset side. While preparing comparative statement, we can see that the value of previous year is 22 lakh and the value of current year is 24 lakh. Therefore, the balance that changes on the basis of these two is 2 lakh. 2 लाख का जो बैलेंस है वो डिफरेंस की अमाउंट के बेसिस पे कैलकुलेट किया गया, और इसके परसेंटेज चेंज की अगर हम बात करें तो इसका जो परसेंटेज चेंज आएगा, एज वी कैन सी हियर दैट परसेंटेज चेंज विल बी 2 लाख डिवाइडेड बाय 22 लाख। ठीक है, और इसका 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 00 से 00 कटा 1 2 3 1 2 3, that means 200 divided by 22, as we can simplify that 100 divided by 11, it could be said that 9.99 will be the value of percentage change. 9.99 will be the value of percentage change, and on the basis of that, अगर हम इन्वेंट्रीज की बात करें तो पिछले साल की इन्वेंट्री 2 लाख, इस साल बढ़कर के 5,60,000 हो गई है। इसका मतलब 3,60,000 की इंक्रीजमेंट हमें देखने को मिली, और इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि जो परसेंटेज चेंज है वो ठीक उसी तरीके से आएगा जिस तरीके से हमने नॉन करंट लायबिलिटीज में देखी थी। और अगर हम बात करें कैश में चेंजिंग की, तो कैश में 1 लाख से 2,10,000 यानी कि 1,10,000 की इंक्रीजमेंट देखने को मिली, और 1,10,000 का मतलब जो परसेंटेज अगर हम निकालें तो 1,10,000 का जो परसेंटेज होगा दैट इज 1 लाख इंटू 100, और यहाँ पे 110% की चेंजिंग हमें देखने को मिली। 110% की एब्सोल्यूट फिगर की रिकॉर्डिंग हम कर देंगे, और उसके बाद बैलेंस शीट की टोटल की अगर हम बात कर लें तो लायबिलिटी साइड और असेट साइड दोनों का टोटल सेम आता है, इसलिए लायबिलिटीज का जो टोटल होगा वो होगा 3 लाख, असेट साइड का जो टोटल होगा 3,70,000, और लायबिलिटी साइड का टोटल जो है 25 लाख हो जाएगा, और इसकी चेंजिंग भी जो है 6,70,000 की होगी, और अल्टीमेटली जो परसेंटेज चेंज होगा वो भी 26.8% का चेंज हमें देखने को मिलेगा। आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपैरेटिव स्टेटमेंट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। अब इसके बाद अगर मान लीजिए इसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हमें कंपैरेटिव की जगह कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाने को बोला जाता है, तो कॉमन साइज स्टेटमेंट में भी कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिमिलर रखेंगे। बस जो एनालिसिस होगी वो वर्टिकल एनालिसिस होगी। वर्टिकल एनालिसिस की कंडीशन में हम सेम ईयर फिगर के साथ कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, और अगर सेम ईयर फिगर के बेसिस पे कंपैरिजन करें तो एब्सोल्यूट चेंज के कॉलम की जगह हम चेंज ऑफ परसेंटेज इन प्रेजेंट ईयर और परसेंटेज इन नेक्स्ट ईयर प्रीवियस ईयर कर लेंगे। परसेंटेज इन करेंट ईयर एंड परसेंटेज इन प्रीवियस ईयर, ये दो वैल्यू हम रिकॉर्ड कर देंगे। और इसके बाद अगर एग्जैक्ट वैल्यू की कैलकुलेशन हम करें
ठीक है, सेम फॉर्मेट से, सेम बैलेंस शीट से अगर हम कॉमन साइज बनाने की कोशिश करें तो यहाँ देखिए कॉमन साइज बैलेंस शीट जैसा मैंने बताया कि करंट ईयर की कंपेरिजन में ही बनता है, तो वहाँ पे जो परसेंटेज निकालेंगे हम करंट ईयर का करंट ईयर के साथ ही लगाएंगे। ऐसी कंडीशन में हम कॉमन साइज जो बैलेंस शीट होती है उसको परसेंटेज चेंज के बेसिस पे या परसेंटेज वैल्यू के बेसिस पे निकालते हैं। तो इसमें जो कंसर्न वैल्यू है, रिलेटेड वैल्यू है, उसको बैलेंस शीट टोटल के साथ डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जो वैल्यू है वो एग्जैक्टली मेजर की जा सकती है। ठीक है, और इस वैल्यू को अगर हम मेजर करें तो उसी बेसिस पे, जैसे यहाँ अगर एक एग्जांपल लेके सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें अगर हम, तो वी कैन सी दैट अगर हम शेयर कैपिटल की बात करें तो 21 लाख का शेयर कैपिटल है, बैलेंस शीट की टोटल वैल्यू है 3,70,000। तो 21 लाख को हम 3,70,000 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट विल बी द वैल्यू ऑफ परसेंटेज इन करंट ईयर। So as we can see that 00 will be divided by 00, 1 2 3 1 2 3, 37 divided by 2100, 37 divided by 2100, we can say that while making division, so it will be divided as 56.7। जैसे और पहली बार हमने 5 टाइम्स कैलकुलेशन की, ठीक है, 5 टाइम की कैलकुलेशन जो है, 5 टाइम की मल्टीप्लिकेशन के बाद जो है ये वैल्यू आ गई हमारी, दैट इज 185। इसको डिडक्ट करके हमने 225 रिमाइंडर लिया और 0 एज इट इज कैरी कर लिया, और इसके बाद 222 ये जो है 6 टाइम मल्टीप्लाई करने के बाद 37 में वैल्यू आई, और फाइनली हम रिमाइंडर लेते हैं 28। तो 28 37 से कटेगा ना, इसलिए पॉइंट लगाया 7 टाइम्स, वैल्यू आई 259। और इसी तरीके से आगे भी वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है, लेकिन हमें जो एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए थी करंट ईयर की वो मिल गई, दैट इज 56.7। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट की कैलकुलेशन करें तो प्रीवियस ईयर का जो शेयर कैपिटल था दैट वाज 20 लाख और टोटल ऑफ द बैलेंस शीट वाज 25 लाख। ठीक है, 25 लाख। इसको अगर हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो हम देख सकते हैं कि 4/5 को हम डिवाइड कर दें, then we will find that the value of previous year percentage will be 80%। यानी जो पिछले साल जो शेयर कैपिटल था वो हमारी बैलेंस शीट के टोटल का 80% था, जबकि इस साल जो शेयर कैपिटल है वो बैलेंस शीट के टोटल का 56.7% है। और इसी तरीके से हर साल हम बैलेंस शीट के हर एक कंटेंट को हम बैलेंस शीट के टोटल के साथ कंपेयर करेंगे और उसकी वैल्यू डिटरमाइन करेंगे। आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज both are clear to you and you are able to perform and solve each and every question so that you could secure the maximum marks. So in the next meeting, whenever we will meet, we'll talk about the financial statement related to some more problem. Till then, take care and goodbye.